किस चीज की बात हो रही है? वन टेस्ट में सुनो।
ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे थे हम लास्ट? सुपरपोजिशन, राइट? रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। एक प्रॉब्लम किया था हमने, मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि द वे टू फाइंड द रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन is to scale it by r, take the incident wave function, but find what it is doing at minus x at the same time, right? And multiply it to r. And to find the transmitted wave function, what you do is you take the incident wave function, see what it is doing at c1 by c2x, and scale it by a factor of t, right? Where r is c2 minus c1 over c2 plus c1, and t, the transmission coefficient, is 2c2 by c2 plus c1. Correct?
Sir, Hmm. sir, you had given an analogy on a swimming pool with basketballs kept. Yeah, Sir, yeah. I have a doubt in that. हाँ. सर उसके अंदर आपने कहा था कि अगर हम सपोज नीचे से एक सोर्स से वेव्स भेजेंगे तो जो सबसे नीचे वाला बॉल होगा उस पे सबसे पहले वो वेव्स हिट करेगा एंड देन फिर इवेंचुअली ऊपर ऊपर जाते जाते तक वो सर्कल का रेडिया डिक्रीज होता जाएगा और देन यू हैड सेड दैट द शेप ऑफ the final shape which will be formed will be like a tangent to all the circles. So that will be a temporary effect or will that be permanent? It will be permanent because they'll all be propagating in the same sense and they'll maintain that phase relationship. And so as it propagates, it will have that tendency to be looking like a singular wavefront. Oh, okay, fine. We will discuss this when we do wave optics. We will discuss this whole phenomenon in detail. But it will maintain that shape and you'll basically recover your law of reflection and law of refraction from that. अच्छा, so इस पे हमने एक प्रॉब्लम किया था जिसमें कि एक स्ट्रिंग था म्यू का और एक स्ट्रिंग था 4 म्यू का, उनको तुमने अटैच कर दिया वाया स्मूथ जॉइन एंड देन यू फाउंड व्हाट इज द आई गेव यू द इंसिडेंट वेव फंक्शन, यू हैड टू फाइंड द रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड वेव फंक्शंस एंड देन यू हैड टू आल्सो फाइंड हाउ मच ऑफ द पावर वाज ट्रांसमिटेड, राइट? एंड व्हाट यू सॉ ओवर देयर वाज दैट कि अगर म्यू का स्ट्रिंग से आता हुआ वेव 4 म्यू में घुसने का कोशिश करता है so you found that around 11% of the energy went in and around 89% of the energy came back. But you can kind of see कि if this mu is brought, the closer this mu is to this mu, the smaller this number will be. Sorry, उल्टा हो गया क्या? 89 transmit हो गया था शायद. हाँ सर, 89 transmitted. 8/9 was transmitted. 89 transmitted and 11 reflected. So the more dramatically different these two are, the more of the energy will be reflected back, because you can see that R, which determines the amplitude of the reflected wave, depends on the difference of the two speeds. So the more different these two mu's are, the more different the speeds will be, the bigger this value will be, and so more of the energy will be reflected back. And the more similar you make them, the closer this number will be to 1, because the more similar they are, the more closer C2 and C1 will be, and so C2 plus C2 will become more close to C2 plus C1. If they are exactly the same, then C1 and C2 are the same, and this number will become 1. So all of the wave will get transmitted, and this number will become 0. Can you see? So if they are exactly the same medium, the closer they are, the more of the energy goes through. If they are exactly identical, all of the energy goes through, because why should it start reflecting? And the more dramatically different they are, the more energy is reflected, the less energy is transmitted. तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे इस फैक्ट को कि ये क्या किस सेंस में कंट्रोल करता है. But this is an actual problem in engineering, in the sense of that if you're transmitting energy via waves and there is a discontinuity, then you will find that the more dramatic the discontinuity, the less energy you will be able to transmit. So if your agenda is to transmit as much of the energy as possible, you don't want the discontinuity to be that much of a discontinuity. Unfortunately, sometimes you can't help it. So an example would be, for example, if you consider that you're transmitting energy via electromagnetic waves in wires, electrical energy is also, because हमारा जो current आता है, वो AC current होता है, alternating current होता है. So it is like a wave. It is kind of like a wave because it's like a sine wave of, except over there it's a sine wave of voltage or sine wave of current, but it is a sine wave. And then what happens is that your energy is coming from some thick wire, thick cable, which has a different mu, and then it has to reach your colony or substation, and then it has to go into thinner wires. It has to split because you have to take it into individual houses. तो घर के अंदर तो उतना thick cable नहीं जाता है, उतना power तो नहीं जाता है एक घर के अंदर. So when you have to break it down, the problem that occurs is that a large amount of it has to gets reflected. Right? That is a problem that occurs over there, and they have to get past it somehow because they don't want energy coming back, right? They want energy to be transmitted. Can any of you tell me what could be done here if I have to connect, let's say, mu to, let's say, 400 mu? What so we could have put a wire with a rope with a variable mu, slowly going from that to that. Correct. We will take a wire which has mu. We will take a wire which has 400 mu, and we will join it with something that has a smooth variation of mu, right from mu to 400 mu.
And in that sense, what will end up happening is that the wave, you're fooling the wave, because as the wave propagates in this, at every stage, while it is true that the medium is continuously changing, it is changing so infinitesimally in every step that it is pretty much the same medium as the one that is a step before it. And so all of the energy goes through and you have none of it getting It will be like almost 100%. correct. इसका एक mechanical analog भी है. Interestingly, this problem has a mechanical analog. Do you kind of see that these are familiar? Do you see that you have seen these kind of things somewhere else also? These two kinds of things. Maybe not C के terms में लिखा हुआ, but masses के terms में लिखा हुआ. M2 minus M1 over M2. Collisions. Correct. ना पुली Collisions में तुमने पढ़ा होगा, if you remember collision का जब तुम theory पढ़ रहे थे, तो उस टाइम तुमने पढ़ा था कि जब कोलिजन होगा, एक बॉडी U1 से आ रहा है, दूसरा बॉडी U2 से जा रहा है, उसको ठोकेगा, वो एक M1 एक M2 है, तो बाद में जो V1 V2 स्पीड्स आते हैं उनमें से एक आता है this times U1 और एक आता है this times U2. And that is analogously the same problem. Like if you have a ball of mass M and you're going to throw it at a ball of mass 400 M, and let's say the collision is perfectly elastic, you will find that you will be able to transfer only a very tiny percentage of energy to that ball. Momentum conserve करके देख लो, तो उससे इसको जो speed मिलेगा, फिर जब उससे इसका kinetic energy निकालोगे, तो barely कुछ kinetic energy तुम इसको transfer कर पाओगे. सारा kinetic energy more or less ये लेके जाएगा. Of course, you can imagine कि 400 M के बजाय 4 trillion M होता, तो literally ये rigid ball है, इसको कोई energy नहीं मिलता, सारा energy लेके वापस आ जाता. But still, it's quite massive, so you are hardly able to transfer much energy to this. It is the same kind of problem as this, right? But if you wanted all of the energy to be transmitted to this, what could you do? So we would like put some lesser You would elastic place a substance. ball. तेरा voice break हो रहा है. सर कुछ lesser elastic substance रख देते बीच में. रुक जाओ, मेरा ही इंटरनेट में कुछ हो रहा है क्या? You would place a ball that is infinitesimally more massive than him. Then you would place a ball that is infinitesimally more massive than that. Then you would place a ball. If you keep a line of such balls, eventually the last one being almost 400 M, then if this one strikes that one, and that's a perfectly elastic collision, then since they are almost the same mass, all of that V will be transferred to that. This will come to rest, and that will have that V. And then when that collides with that, because they are almost the same mass, that will come to rest, and that will have V. And so eventually, after all is said and done, this will be going at exactly the same V as this. I mean, not at exactly the same V, whatever V, but all of the kinetic energy will have been transferred to this. It will be going at a very smaller V still, because total energy is also conserved. Half mv square equals to half 400 mv square. But that V will be small, but all of the kinetic energy will have transferred to this. Make sense? Yes, sir. तो ये इसका मैकेनिकल एनालॉग है, बट एनीवे वो रेलेवेंट नहीं हमारे लिए. अब कमिंग बैक टू दीज इक्वेशंस, व्हाट डू दे टेल अस, राइट? वी विल एक्सप्लोर RNT नाउ and or rather later in various cases, but let me take a graphical example of what these two mean. Like what are you supposed to be doing with these two? I mean, तुम्हें आता है करना, क्या करना है? Simply have to replace the and then do this. But what does it actually mean to do that? So for that purpose, let me take an example. सर हाँ. ऊपर वाले बॉल वाले एनालॉजी में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कीप अ लेसर इलास्टिक सब्सटेंस इन बिटवीन, तो उससे ज्यादा ट्रांसफर होगा. नहीं. I mean, you want to say that there is like a spring there. Kind of. Okay, kind of. You could say कि spring पहले पूरा compress हो जाएगा तो सारा energy spring में आ जाएगा फिर, लेकिन spring recoil करेगा दोनों तरफ. Problem वही है. 100% नहीं होगा. इसलिए यही सिस्टम है उसका. इसका एक टॉय भी होता है, न्यूटन्स क्रेडल. इफ यू हैव सीन, देयर इज अ बंच ऑफ दीस. यस सर. ऐसे करके होता है, फिर वो आके इसको ठोकता है, फिर लाइन 5 बॉल, और वो सारे के सारे रेस्ट पर आ जाते हैं, और जैसे ही इसको ठोकता है तो लास्ट वाला चल पड़ता है. सो वही चीज हो रही है ऑलमोस्ट. अच्छा, तो अब मैं इसको इलस्ट्रेट करता हूँ बाय अ ग्राफिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट इट डज. तो उसके लिए क्या करेंगे, आई विल बी टेकिंग अ वेव, अ पल्स, and I will be showing how this works on that pulse. Because I have to draw it, I will take a particularly easy looking pulse, which is an unrealistic pulse. Rectangular pulse मैं लूँगा, जो कि reality में नहीं हो सकता, but it's basically to show you what these two things do. So let me take these two data only. ठीक है, let us say कि हमारा wave mu से आ रहा है और 4 mu में जा रहा है.
लेकिन जो वेव आ रही है, पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ इनको। ये जो जगह है तुम्हारा, ये तुम्हारा x इक्वल टू 0 है। तो मैं टाइम में थोड़ा थोड़ा बाद में दिखाऊंगा क्या हो रहा है। जो वेव आ रही है वो इधर का रीजन जो है C2 C1 ले लेते हैं, एक तरफ C ले लेते हैं, या एक तरफ इधर की तरफ C2 जो है C ले लेते हैं, और C1 जो है वो 2C ले लेते हैं। तो यही रेशियो हो गया, वो यही कनेक्शन है। यस सर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अम, जो पल्स में ले रहा हूं वो मैं बेसिकली ले रहा हूं ऐसा। आप फ्रोजन हो गए। आवाज आ रही है क्या तुम लोग को? हाँ सर। ठीक है, तो जो पल्स में ले रहा हूं दैट इज दिस पल्स एंड इट विल गो ऑन टू दैट स्ट्रिंग। ठीक है, x इक्वल टू 0 है जहां पे जॉइन है, और पल्स जो मैंने लिया है वो मैं ले रहा हूँ 3 डब्बा वाइड और 1 डब्बा टॉल। आई मीन यूनिट जो भी हो उसका, मीटर मान लो, तो इट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर टॉल, राइट? दैट इज योर इंसिडेंट पल्स, दिस इज योर YI। ठीक है, राइट? अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसके साथ क्या होगा। तो पहले मैं क्या दिखा रहा हूँ, इसका एक अगला स्टेज दिखा रहा हूँ जिसमें कि ये पल्स जो है इसका पहला डब्बा अंदर जा चुका है। अंदर जा चुका है मतलब दैट पार्ट ऑफ द वेव हैज गॉन टू द नेक्स्ट साइड। सो एक सिचुएशन ये हो गया है कि 2 डब्बे इसी साइड बचे हैं और 1 डब्बा उधर जा चुका है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, पहले मैं बना देता हूँ इसको। अब मैं इसको क्या बना रहा हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ ऑरेंज में। ठीक है, ब्लैक में मैं फाइनल शेप ऑफ द स्ट्रिंग बनाऊंगा। अभी मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म बना रहा हूँ। तो अभी ये वो स्टेज आ गई जिसमें इसके 2 डब्बे इधर ही हैं और 1 डब्बा इधर जा चुका है। तो ऑरेंज में यू आर सीइंग द इंसिडेंट वेव। अभी तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बना रहा हूँ ये? हाँ सर, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन टू अदर, द इंटरमीडिएट। This is not the actual shape of the string, this is simply the incident wave, mathematical incident wave। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये ट्रू है कि इंसिडेंट वेव दूसरा मीडियम में तो नहीं जा रहा है एक सेंस में, क्योंकि उधर वो जब निकलने लगता है तो उधर वो ऑलरेडी ट्रांसमिटेड वेव बन गया होता है विच इज गिवन बाय दिस। बट वी स्टिल यूज इट बिकॉज द ट्रांसमिटेड वेव इज ऑल्सो गिवन बाय ट्रांसफॉर्मिंग द इंसिडेंट वेव। So we are still drawing the entire incident wave even on the other side. This part of it is not a real, this is still kind of, you could say it still exists, but this is only a mathematical thing. And इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं ghost wave। ठीक है, तो मतलब वो कहने के लिए कुछ भी कह दो, but this part of it we will call the ghost incident wave। जैसे वो डॉटेड करके हाइपोथेटिकल बनाते हैं वैसा ही ना? हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगाऊंगा जो मुझे बताए गए हैं। तो पहले रिफ्लेक्टेड साइड पे लगाते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन के लिए क्योंकि C1 2C है और C2C है, तो वंस एंड फॉर ऑल R एंड T सॉल्व करके रख लेते हैं इस सिचुएशन का। इस सिचुएशन का R कितना होगा, C2 माइनस C1 ओवर C2 प्लस C1, करेक्ट? यानी कि माइनस, आप से डिस्कनेक्ट हो गए। आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि R निकाल लेते हैं इधर का और T निकाल लेते हैं इधर का।
T कितना हो जाएगा 2C2 बाय C2 प्लस C1 यानी 2/3, करेक्ट। तो T हाँ। हमारा 2/3 है और R हमारा -1/3 है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब मेरे को क्या कह रहा है फॉर्मूला, क्या कह रहा है फॉर्मूला, ये कह रहा है कि यदि तुम, अब देखो रिफ्लेक्टेड वेव कौन सा साइड एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे? नेगेटिव। नेगेटिव। तो यानी अगर तुम रिफ्लेक्टेड वेव के लिए फाइंड करना चाहते हो कि कहीं पे वो क्या कर रहा है, तो ये एक्स तो नेगेटिव ही है। मान लो तुम फाइंड करना चाहते हो कि रिफ्लेक्टेड वेव -2 तक, क्योंकि 1 यूनिट में ले रहा हूँ ना, 1 ऊंचा है और 3 यूनिट लंबा है, तो ये तुम्हारा सॉर्ट ऑफ +1 है, ये -1 है, ये -2 है, राइट। यस। ये 0 है। तो अगर मेरा इंसिडेंट वेव -2 में ही एग्जिस्ट करता है, सुपरपोजिशन होगा। हाँ, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है बेसिकली, अभी तक मेरा इंसिडेंट वेव कहां तक पहुंच गया है, प्लस में 1 तक। राइट। तो मेरा रिफ्लेक्टेड वेव कहां तक पहुंच गया होगा? -1 तक। -1 तक, क्योंकि अगर तुम बोलोगे कि तुम्हारा इंसिडेंट वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट +2 पे कितना है, 0। तो देयरफॉर अगर तुम यहाँ +2 डाल दो विल गेट 0। तो तुम्हें -2 पे 0 मिलेगा रिफ्लेक्टेड के कारण। यस। बेसिकली क्योंकि इंसिडेंट वेव +1 तक ही पहुंचा है, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिगर देन +1 यू डोंट हैव एनी yi, therefore which means that for all values of x smaller than -1 you don't have any yr। ये बात समझ में आ गई सबको? which basically simply means कि जितना इंसिडेंट वेव अंदर चला गया होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड वेव वापस आ गया होगा। तो ये जो एक डब्बा अंदर चला गया है, तो एक डब्बा रिफ्लेक्ट हो चुका होगा, उसके 1 के आगे कुछ नहीं है, तो इसका -1 के इधर कुछ नहीं होगा। अब वो ठीक है, और फिर क्या करो, r से स्केल कर दो उसको। r तुम्हारा -1/3 है, तो बेसिकली जो रिफ्लेक्टेड वेव है जो मैं ब्लू में बना रहा हूं वो -1 तक आ गया होगा और 1/3 साइज का होगा, लेकिन माइनस के कारण उल्टा भी होगा, तो ऐसा दिखेगा वो। समझ गए सब लोग? हाँ सब, बट कहो होगा ना कि फ्लैट ही होगा। नहीं फ्लैट ही होगा, क्योंकि वो भी फ्लैट है, उसी का तो स्केल्ड वर्जन है वो। राइट। सेम ही फंक्शन है, केवल वर्टिकली स्केल्ड है बाय r। शेप में सेम है, अगर ये साइन फंक्शन है तो ये भी साइन फंक्शन है, अगर ये साइन फंक्शन है तो ये भी साइन फंक्शन है। केवल क्या होता है, देखो सामने नंबर मल्टीप्लाई होने से फंक्शन वर्टिकली स्केल हो जाता है, दिखता खुद के जैसा ही है। तो रिफ्लेक्टेड वेव इंसिडेंट वेव जैसा ही दिखता है, लेकिन वर्टिकली स्केल्ड है और -x के कारण ऐसे फ्लिप है। राइट सर। इंसिडेंट वेव अगर ऐसा दिखता है तो रिफ्लेक्टेड वेव ऐसा दिखता है, दैट इज ड्यू टू द -x। और साथ में वर्टिकली स्केल डाउन भी हो सकता है या स्केल अप भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है r की वैल्यू पे। और नेगेटिव मतलब है कि फ्लिप हो जाएगा ऐसे करके, रिफ्लेक्शन अबाउट द x एक्सिस। जो ट्रांसमिटेड वेव है वो भी स्केल्ड होगा, दिखेगा तो इंसिडेंट वेव जैसा ही, लेकिन एक तो प्लस ही है, ये माइनस नहीं है। तो इंसिडेंट वेव अगर ऐसा दिखता है तो ट्रांसमिटेड वेव भी ऐसी दिखेगा, इट विल नॉट बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। बट t के कारण वो ऐसे स्केल हो जाएगा और अंदर c1/c2 के कारण वो ऐसे भी स्केल हो जाएगा। यू रिमेंबर फंक्शन में आर्गुमेंट के आगे कुछ होता है तो वो ऐसे स्केल करता है, sin x sin 3x वाली बात है। यस और ये 3 sin x वाली बात है। सो द ट्रांसमिटेड वेव is not only scaled vertically but is also scaled horizontally. The transmitted wave is a vertically and horizontally scaled version of the incident wave, and in the same direction. It is not reflected like this. The reflected wave is only a vertically scaled version and a flipped version of the incident wave. तुम लोग समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? यहां तक क्लियर है सबको ये? अब ट्रांसमिटेड वेव जो है वो मैं बना रहा हूं पिंक में, और ट्रांसमिटेड वेव का रेसिपी क्या है? ट्रांसमिटेड वेव का रेसिपी ये है कि अगर तुम देखना चाहते हो ट्रांसमिटेड वेव किसी x पे क्या कर रहा है, तो तुम देखो इंसिडेंट वेव c1/c2 x पे क्या कर रहा होगा। अगर मैं देखना चाहता हूं ट्रांसमिटेड वेव, मेरा इंसिडेंट वेव 1 पर पहुंच गया है, पहले तो ऐसे ही समझ लो, देखो
इंसिडेंट वेव 2c स्पीड से चल रहा है। ये अलग बात है कि अब वो उधर पहुंच गया है, लेकिन ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ये उधर भी 2c से ही चलता होगा। आर यू फॉलोइंग? राइट? तो ये उधर पहुंच गया है और ये 1 तक पहुंच गया है। तो अगर जो 2c से वेव चलता है तो वो 1 तक पहुंच गया है, तो जो एक्चुअल उधर का वेव है ट्रांसमिटेड c से चलने वाला, वो अभी कहां तक पहुंचा होगा? इधर 0.5। समझ रहे हो ना सारे लोग? हाँ सर, पॉइंट वाइज एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। आवाज आ रही है अभी भी? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसमिटेड वेव है वो हाफ तक पहुंच गया होगा। तो हाफ तक पहुंच गया होगा, ठीक है, ये बता रहा है। ये c1/c2x का मतलब ही यही है। देखो c1 तुम्हारा 2c है, c2c है, तो c1/c2 कितना हो गया? 2। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर तुम देखना चाहते हो ट्रांसमिटेड वेव x पे क्या कर रहा है, तो तुम देखो इंसिडेंट वेव 2x पे क्या कर रहा है। ये 2x जो है वो इस पर्टिकुलर एग्जांपल का नेचर है कि 2c और c है। किसी और में अगर ये 4c और c होता तो यहाँ पे 4 आ जाता। तो ये क्या कह रहा है कि अगर तुम देखना चाहते हो कि ट्रांसमिटेड वेव किसी x पे किसी टाइम t पे क्या कर रहा है, तो ये देखो कि इंसिडेंट वेव उसके डबल x पे क्या कर रहा है, क्योंकि इंसिडेंट वेव ट्वाइस स्पीड से जा रहा होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर तुम देखना चाहते हो कि ट्रांसमिटेड वेव हाफ पे क्या कर रहा है, तो तुम देखो कि इंसिडेंट वेव 1 पे क्या कर रहा है। एंड नेचुरली क्योंकि इंसिडेंट वेव 1 से आगे क्या कर रहा है? 0, तो ट्रांसमिटेड वेव हाफ से आगे क्या कर रहा होगा? 0। और इंसिडेंट वेव 0 से 1 के बीच में क्या कर रहा है? 1। तो ट्रांसमिटेड वेव 0 से हाफ के बीच में क्या कर रहा होगा? 1, बट हैज टू बी स्केल्ड बाय t, सो 2/3। So it will be 1 plus 2/3, right? नहीं, स्केल्ड है, हाँ मल्टीप्लिकेटिव हाँ हाँ, है। सॉरी। ये ट्रांसमिटेड वेव है। सबको समझा ये चीज? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब हम क्या करेंगे फाइनल शेप ऑफ द स्ट्रिंग बनाने के लिए? On the transmitted side, the only real wave is the transmitted wave. The incident wave is only our thing for understanding what it is not actually the wave on that side. The only wave on that side is the transmitted wave. So the actual shape of the string on that side is given by the transmitted wave only. So let me make the actual shape here. ये जो है, ये actual shape of the string है on that side. This is 0.5 and this height is 2/3. ये समझा सबको? लेकिन ये साइड का जो एक्चुअल शेप ऑफ द स्ट्रिंग है वो किससे मिलता है? सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। तो अब तुम देख लो, इस रीजन में 0 से -1 तक के रीजन के बीच में तुम्हारे पास इंसिडेंट वेव है जो +1 डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रही है, और रिफ्लेक्टेड वेव है जो -1/3 डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रही है। तो यहां से यहां तक के बीच में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होता होगा? डू यू ऑल फॉलो? यस सर। यस Right? सर। लेकिन उससे पहले जो है -1 से -2 के बीच में रिफ्लेक्टेड वेव पहुंचा ही नहीं है, तो वो 0 कर रहा है उधर, और इंसिडेंट वेव पूरा 1 कॉज कर रहा है, तो उधर में 1 होगा। एक्चुअली मेरा गलत बन गया यहाँ पर, ये ऊपर होना चाहिए ऐसे 1 तक, ये कुछ नहीं है, और फिर नीचे आ जाएगा, और फिर उसके बाद 0 है इधर। दिस इज द नेट शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट द इंस्टेंट व्हेन वन बॉक्स हैज गॉन इनसाइड। सबको एग्जांपल समझ में आ गया? ऐसा दिखता होगा ये टेम्पोररीली। नेचुरली अब जब ये चलेगा, चल ही रहा है कंटिन्यूअसली, तो जब चलता रहेगा तो ये और निकलेगा आगे। इसके साथ क्या हो रहा है कि जितना ये आगे निकल रहा है, जितना पार्ट इसका अंदर जा रहा है, वो पार्ट ऐसे 2/3 स्केल हो जा रहा है और ऐसे हाफ स्केल हो जा रहा है। सर वो लेफ्ट वाला पार्ट -1/3 नहीं होना चाहिए? नहीं, इसका और उसका सुपर पोजिशन होगा ना। हाँ राइट, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है।
रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट का सुपरपोजिशन मिलता है तुम्हें लेफ्ट साइड पर। हाँ, और राइट में सिर्फ डायरेक्ट वही मिलेगा। हाँ, इस साइड में यहाँ पे इंसिडेंट जो है वो +1 है और रिफ्लेक्टेड -1/3, तो टोटल 2/3 मिलेगा। वो वैसे भी मिलना चाहिए बिकॉज द स्ट्रिंग हैज टू बी कंटिन्यूअस। हाँ सर। The string has to be continuous at the join, right? It has to have the same value on either side. और फिर उसके बाद तो basically in summary what is happening is as more and more of this pulse goes into the second medium, whatever part of it has gone there will scale down by 2/3 and will scale horizontally by half. जब इसके 2 डब्बे अंदर चले जाएंगे तो पिंक वाले का एक डब्बा बन गया होगा जो 2/3 हाइट का होगा। What is happening with the reflected wave is that कि reflected wave extent में उतना ही होता है जितना incident wave अंदर चला गया होता है because of simply the -x है। ठीक है, तो तुम्हारा reflected wave जो है एक डब्बा चला गया तो एक डब्बा रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, माइनस साइन के कारण r का जो माइनस साइन है उसके कारण वो फ्लिप हो गया है अपसाइड डाउन, और 1/3 के कारण वो 1/3 स्केल हो चुका है। ठीक है, सब लोग फॉलो कर रहे हो पूरा स्टोरी? For a different set of R and T, for a different set of speeds, you might get a different looking situation. All right. फिर थोड़ी देर में क्या होगा, और ये अंदर जाएगा, दो पिंक डब्बे आगे होंगे जो छोटे होंगे, और यहाँ पे after a long time कैसा दिखता होगा? What will be the final reflected wave looking like and what will be the final transmitted wave looking like? Like if you allow the whole thing to have happened completely. तो 2/3 एम्पलीट्यूड का जाएगा 3 बॉक्स का। 1.5 इस साइड में करेक्ट, इस साइड में जो तुम्हारा ट्रांसमिटेड वेव होगा वो 2/3 हाइट का होगा और 1.5 डब्बे लंबा होगा। ये समझे तुम लोग? यस। इट इज 2/3 इन हाइट एंड ओनली 1.5 इन लेंथ। 3 डब्बे जो है स्केल डाउन होके 1.5 हो जाएंगे। ये अलग बात है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई विल कम टू दैट इन अ सेकंड। एंड ऑन दिस साइड यू विल हैव समथिंग which first of all will have gone twice as far away from here as this has gone. Do you understand this point? Reflected wave तो वही स्पीड से चलता है जो इंसिडेंट वेव का स्पीड है, क्योंकि यही मीडियम में चल रहा है। सॉरी, इधर का स्पीड 2c है, तो ये डब्बे अगर इतना दूर पहुंच गए हैं तो पूरा जो रिफ्लेक्टेड डब्बे हैं वो डबल दूर पहुंच गए होंगे। ठीक है, अब मान लो डबल दूरी पर ही है वो, और वो होगा -1/3 का होगा वो, और 3 पूरे डब्बे होंगे वो। The reflected wave is not scaled horizontally and 3 units. This is going at C, this is going back at 2C. This is the complete reflection transmission of the 3 box long 1 box high square rectangular pulse. सर प्रीवियस पे दिखा सकते हैं? Previous page. So वो C1/C2 होगा y ट्रांसमिटेड में, so it should be 2x 2 times ना, y half। 2 होने से ही तो हाफ हो रहा है। C1 is 2c। C1 is 2c, right? हाँ, तो C1/C2 is 2। तो yi 2xt is yt xt, right? राइट, ओके, सो हाफ यानी yi जो 2 पे कर रहा है वो ये हाफ पे करेगा, समझ आया? राइट। यस। बेसिकली अगर तुम देखना चाहते हो कि ट्रांसमिटेड वेव 5 पे क्या कर रहा है, तो तुम देखोगे इंसिडेंट वेव 10 पे क्या कर रहा है। ऐसे भी सोच सकते हो, अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस इज कि जब पूरा हो चुका है काम, जब दोनों अलग अलग जा चुके हैं, मान लो ऐसा दिखता है अभी, और तुम ये कह रहे हो कि ये कैसे पता चला कि ये कंप्रेस हो गया बाय फैक्टर ऑफ 2, इज दैट यू से कि तुम्हारा इंसिडेंट वेव जो है, देखो जब ये अंदर घुसेगा ऑरेंज वाला, तो ऑरेंज वाला हम पूरा बना भी सकते हैं ना, मान लो मैं इधर पूरा ऑरेंज बना भी सकता हूँ, मैथमेटिकल है वो तो, गोस्ट वेव, तो वो पूरा अंदर चला गया। अब मान लो किसी इंस्टेंट पे वो ऑरेंज वाला घोस्ट वेव x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल टू 4 तक एग्जिस्ट करता है ना? हाँ सर। राइट, तो अगर वो इंसिडेंट वेव x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 4 तक एग्जिस्ट करता है, और ये 2 है C1/C2 का फैक्टर, तो अगर तुम्हारा इंसिडेंट वेव का पीछे वाला एज 1 पर है, तो तुम्हारा ट्रांसमिटेड वेव का पीछे वाला एज 2 पर होगा। यहाँ 1 डालोगे x1 और ये फैक्टर 2 है,
हाँ सर, राइट? एक्चुअली मेरा उल्टा हो गया क्या कुछ? नहीं सब बराबर है शायद। नहीं, एक सेकेंड। अगर C1/C2 2 है और इंसिडेंट वेव का लो लेफ्ट एज जो है x=1 पर है, अच्छा वही कहीं वो 2 टाइम्स होगा कि हाफ होगा, वो कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी। हाँ एक सेकंड रुक जा, देख लेते हैं, वही मैं देख लेता हूँ। मे बी देयर इज समथिंग, आई माइट हैव रिटन C1/C2 बट इट माइट बी C2/C1। मेरा जो yi है वो x=1 पे लेफ्ट एज है उसका। आई थिंक हाफ ही होगा बिकॉज एनर्जी कंजर्व भी करेंगे, तो इनिशियल उससे ज्यादा एनर्जी, तो कम एनर्जी करने के लिए उसको उसका लेंथ भी कम करना पड़ेगा ना। नहीं वो तो ठीक है, एम्पलीट्यूड भी तो कम हो रहा है उसका। मगर एक सेकंड रुक जाओ, अभी वेरीफाई हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इधर जो है इंसिडेंट वेव जो है x=1 से 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो x=1 पे डालने पे वो कुछ नॉन जीरो देता है, तो ये x=2 डालने पे नॉन जीरो देता है। नहीं एक सेकेंड, बट एनीवे स्पीड अगर इसका हाफ हो गया है तो वेवलेंथ भी हाफ हो जाना चाहिए। करेक्ट ही है, यही करेक्ट है। दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि अब वैसे तो ये पीरियोडिक वेव नहीं है, राइट, बट यू कैन स्टिल थिंक ऑफ दिस एज द वेवलेंथ ऑफ इट। आई मीन यू कैन से कि भाई ये इसका वेवलेंथ 3 है, मान लो। हो सकता है पीरियोडिक भी होता, 3 डब्बे, फिर नीचे 3 डब्बे, फिर ऊपर 3 डब्बे, सो यू कुड से कि इसका वेवलेंथ 3 है। तुम्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है अगले मीडियम में भी, तो इधर का फ्रीक्वेंसी और उधर का फ्रीक्वेंसी सेम है, और तुम्हें पता है कि एफ लैम्डा सी होता है। अब अगर उधर और उधर का फ्रीक्वेंसी सेम रहना है तो एफ कांस्टेंट है, तो अगर C/2 होने वाला है उधर जाके, हाफ होने वाला है ना, इधर का स्पीड का हाँ तो हाफ, लैम्डा भी हाफ होगा। तो लैम्डा भी हाफ हो जाना चाहिए। बेसिकली उधर जो है तुम्हारा हाफ का फैक्टर से हॉरिजॉन्टली कंप्रेस डाउन हो जाना चाहिए वो, ऐसे भी देख सकते हो। राइट। ठीक है, तो ये तुम्हारा आउटकम है फाइनल आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द होल थिंग। इधर जो है तुम देखो, अगर एफ लैम्डा इक्वल टू सी इधर लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सारे, भी सेम है। और इधर सी भी सेम है क्योंकि सेम मीडियम में आता है, तो इसलिए इधर वेवलेंथ भी। तो रिफ्लेक्टेड वेव कभी भी हॉरिजॉन्टली स्केल नहीं होता है, जैसा ट्रांसमिटेड वेव जितना लंबा होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड वेव लंबा होता है। The only thing that can happen to the reflected wave is that it can be vertically scaled and can get flipped. Not necessarily always, but can get flipped and get vertically scaled. The transmitted wave is horizontally scaled and vertically scaled. What you will also find, Abhi, is that it is never flipped. The transmitted wave is never flipped. We'll see that in a second. But I hope ये वाला example सबको clear हो गया होगा। हाँ सर। ठीक है? For a sine wave, if I took a sine wave and took the same data, तो वे इक्वेशन लिख के सुपरपोज करना पड़ता ना फॉर द रिफ्लेक्टेड पार्ट। करेक्ट। अब मैं साइन वेव अगर बनाता कि भाई ये मेरा इंसिडेंट साइन वेव आ रहा है, अब मैं इसको बीच में नहीं बनाऊंगा क्योंकि उतना ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है कि मैं इसको पार्शियली अंदर घुसा के और फिर साइन का साइन टेढ़ा आधा साइन के साथ सुपरपोजिशन बना सकूं। बट बेसिकली अगर ये हो चुका है काफी सारा, तो जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव होता वो कैसा होता, इसी डेटा को अगर लेते हुए सॉल्व करें, इट वुड बी द सेम विड्थ, वेवलेंथ सेम रहता, फ्लिप हो जाता और 1/3 स्केल हो जाता। राइट। तुम लोग समझ गए ये वाला एग्जाम्पल? राइट। दिस वुड बी -1/3 scaled, but would not be scaled like this and is flipped. You can see it is flipped. इसलिए वो सिमुलेटर में फ्लिप करके आता था आपका कॉलेज में। Actually ये flipping गलत है, तुम लोग बता सकते हो क्यों? Another important aspect about waves is that why is this drawing wrong? Why should be more correctly like this? Can you tell why? नहीं सर फर्स्ट वाले करेक्ट। नहीं ये करेक्ट है। देखो, you have to understand, रिफ्लेक्शन जो वर्ड होता है ना उसका मीनिंग हर कॉन्टेक्स्ट में, चाहे ऑप्टिक्स हो, चाहे वेव्स हो, चाहे कुछ भी हो, रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज, द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्शन is always FIFO, first in first out। ठीक है,
यानी कि अगर मान लो कोई रिफ्लेक्शन हो रही है किसी चीज से, मैं एक जनरल एब्स्ट्रैक्ट बात बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं रिदम सुपरपोजिशन नहीं है, मान लो वो हो चुका है पूरा, अब ये जा रहा है, सुपरपोजिशन की बात नहीं कर रहे, मैं बता रहा था एक्चुअल रिफ्लेक्टेड वेव, कि अगर मान लो तुम ए बी सी डालते हो जो अंदर गया, तो जो चीज बाहर जा रही होगी उसमें ए आगे होगा कि सी आगे होगा? ये आगे हो, ए ही आगे होगा। बट वो हाँ, लॉजिकली समझता नहीं क्योंकि ए लाइक नहीं आगे होगा, सी आगे होगा, सी पहले जा रहा है ना अंदर, हाँ तो ये ऐसा जाएगा है ना, तुम लोग समझ गए? राइट रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि जो चीज ऐसा दिखता है वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे दिखेगा। राइट Make sense? Right? You all follow? Now, our wave that is going in has a depression followed by a peak. तो पहले डिप्रेशन आएगा ना, तो पहले डिप्रेशन निकलना चाहिए, लेकिन फिर फ्लिपिंग हो रही है अलग से, वो जो माइनस का फैक्टर है वो ऐसे फ्लिपिंग है। सुपरपोजिशन वाला पार्ट। नहीं सुपरपोजिशन नहीं, तुम लोग सुपरपोजिशन से कंफ्यूज कर रहे हो। सुपरपोजिशन हो चुका, ये देखो ये फ्लिप्ड ही है ना -1/3 के कारण, अभी थोड़ी सुपरपोजिशन है, इंसिडेंट वेव यूज अप हो चुका है पूरा। ये वो एग्जांपल है जिसमें कंटिन्यूअस वेव नहीं आ रही है, एक पल्स आ रही है, फिर वो पूरी यूज हो जा रही है इनटू अ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। नाउ देयर इज नो इंसिडेंट पल्स लेफ्ट। यस So this is not the superposition. I mean, you could still say it is the superposition, but the incident wave is now completely zero on this side, right? राइट So it is totally the reflected wave. So you see that it has flipped like this. मेरे वाले एग्जांपल में जो चीज मिसिंग थी, जो इस एग्जांपल से इलस्ट्रेट हो रही है, वो ये थी कि मेरा डब्बा जो है वो लेफ्ट राइट सिमेट्रिक था। हाँ तो ये चीज इसमें हाईलाइट नहीं हो पा रही थी कि रिफ्लेक्शन का मेन पॉइंट ये होता है कि जो चीज ऐसे जा रहा है वो ऐसे आना चाहिए वापस। लेफ्ट वो टू राइट इसमें इन्वर्जन। वो इसमें नहीं पता चल रहा था क्योंकि ये बेसिकली ऐसे और ऐसे सेम दिखता है। तो तुम्हें इसमें केवल माइनस का इफेक्ट दिखा, ये वाले माइनस का कि नीचे आ गया है, और स्केलिंग का इफेक्ट दिखा, लेकिन जो बैक टू फ्रंट इन्वर्जन है विच इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तुम इसमें नहीं देख पा रहे थे। तो वो तुम इस एग्जांपल में देख सकते हो, क्योंकि साइन फंक्शन ऐसे ऐसे सिमेट्रिक नहीं है। पहले गड्ढा गया, पहले पहले ट्रफ गया अंदर, तो पहले ट्रफ वापस आना चाहिए, लेकिन ऐसे भी तो हो रहा है फिर -1/3 जो हो रहा है, तो ट्रफ को वो ऊपर कर देगा और क्रेस्ट को नीचे कर देगा। राइट सबको समझ में आ गया एग्जांपल? यस सर। सर अभी इसके बाद पोजीशन होगा राइट। नहीं वो यूज हो गया, मान लो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, जाने दो सुपरपोजिशन को, हमने यूज हो वो गया वो पूरा, इतना ही वेव था, हमने इतनी देर वेट किया जब तक वो पूरा कंज्यूम हो गया, अब ये जा रहा है और वो जा रहा है, मान लो दूर है, ओके समझ। ये पूरा अंदर चला गया, इसका गोस्ट वर्जन इधर आ चुका है पूरा। इट्स नॉट एन इंटरमीडिएट पूरा होने के बाद। हाँ पूरा यूज हो गया, सिंगल वेवलेंथ आया, वो पूरा अंदर चला गया, जैसे जैसे वो अंदर गया वैसे वैसे ये निकला बाहर, तो वो जब पूरा अंदर चला गया तो ये पूरा बाहर आ चुका है, राइट? और जब भी जा रहा है तभी सुपरपोजिशन होगा, अभी तो पूरा चला गया हाँ तभी अभी कुछ अभी अभी वो थोड़ा बचा होता है इधर और उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर निकल गया होता, तो उनका सुपरपोजिशन हो रहा होता है इधर, अभी तो अकेला है। वो कॉम्प्लिकेटेड होता। लेकिन मैंने वो ये होता जो मैंने यहाँ बनाया, अब वो साइन के लिए मैं नहीं बना सकता इतना कॉम्प्लेक्स, तो मैंने डब्बा ले लिया था इंटरमीडिएट स्टेज। लेकिन राइट जब पूरा यूजअप हो गया तब तो ये बन गया, ये बन गया, तो उसी का मैं वर्जन दिखा रहा हूँ साइन वेव के लिए कि ये पूरा यूजअप हो चुका है, तो पूरा ट्रांसमिटेड वेव भी बन चुका है एक वेवलेंथ लंबा, और पूरा इंसिडेंट वेव भी, रिफ्लेक्टेड वेव भी बन चुका है। रिफ्लेक्टेड वेव में जो तो सीखने वाली बात ये है कि इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीनिंग द फर्स्ट थिंग टू गो इन वाज द ट्रफ, so the first thing that must come out is the trough, but since there is a minus ka factor, the trough becomes a crest and the crest becomes a trough. The minus ka factor on r, when r is -1, when r is a negative number, that is a phase difference of pi. You already understand this, right? This wave is shifted in phase with this wave by pi. Agreed? यस सर। And what about the transmitted wave? वो कैसा दिखेगा इस context में साइन वेव का? सो वो हाफ साइज हो जाएगा और स्केलिंग भी 2/3 हो जाएगा। करेक्ट, तो वो 2/3 लंबा होगा और वो वेवलेंथ में भी छोटा होगा। हाफ लेवल। ये जो है ये 2/3 लंबा है, ये जो है ये 1/3 लंबा है, लेकिन ये बराबर उतना ही है लैम्डा, अगर ये लैम्डा है तो, लेकिन ये जो है ये λ/2 है। सबको समझ गया? हाँ सर। ये λ/2 है इसके कंपैरिजन में, लेकिन इस तरफ ये अपना वेवलेंथ है। लैम्डा डैश है। हाँ ये अभी इधर का वेवलेंथ यही है, लेकिन वो उस साइड के वेवलेंथ का हाफ है। ये पूरा साइन फंक्शन है, ये आधा कटा हुआ साइन फंक्शन नहीं है, लेकिन इधर का स्केलिंग ही कंप्रेस्ड है बाय फैक्टर ऑफ 2, देयरफॉर इधर का एक वेवलेंथ इधर के 2 वेवलेंथ के बराबर होता है। सबको एग्जांपल क्लियर हो गया?
right? Yes, sir. And you can see that the transmitted wave looks exactly like the incident wave. There is no back to front. इसमें आगे ट्रफ चल रहा है, उसमें भी आगे ट्रफ चल रहा है, पीछे क्रैश चल रहा है, इसमें पीछे क्रैश चल रहा है. जैसे जैसे ये अंदर जाता जाता है, उसी का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन यहाँ से निकलता जाता है. Transformed like this and transformed like that. Right? Clear to all of you? ठीक है. Yes, sir. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट. The reflected wave is always left right inverted with respect to incident wave. ये तो होगा ही. This is the definition of reflection. It will also be up down reflected, up down inverted if, can you tell? That is not always the case. That depends on one thing. If incident wave का part भी always positive या always negative है. नहीं, if R is less than 0. If R is negative, then the reflected wave is also flipped like this. R can also be positive, so it will not be flipped like this. But it will always be flipped like this. Left to right flip तो होना ही होना है. फिर additionally up down flip होगा या नहीं होगा, वो R के साइन पे डिपेंड करता है. Do you all understand this note? Yes. ठीक है, clear? All right. So एक मिनट. Sir, 1 minute. Done. Okay. अब R और T के केसेस एक्सप्लोर करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या हो सकता है. तो बेसिकली क्या है, नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज वी आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग द बाउंड्री कंडीशंस, राइट, इन अ वे कि अगर मान लो लेट्स से R और T के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं और वो क्या क्या केसेस को डिटरमिन करते हैं. ठीक है, तो केस 1 ये है कि wave goes from rarer to denser medium. rarer denser का मीनिंग क्या है वेव के कॉन्टेक्स्ट में? rarer medium कौन सा मीडियम है जिसमें वेव का स्पीड ज्यादा है? ठीक है, उसको rarer medium बोलते हैं. तो
अब अगर ऐसा हो रहा है कि वेव गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन बेसिकली C1 C2 में क्या रिलेशनशिप है? C1 is bigger than C2. Do you agree? Right? इस टाइप का कुछ केस है हमारा. अब अगर C1 C2 से बड़ा है तो R which is C2 minus C1 over C2 plus C1 will be less than 0. Do you agree? Negative. Which means the reflected wave is up down inverted, which is also the same as saying that there is a phase difference of pi introduced additionally. And how about T, which is 2C2 by C2 plus C1? ये तो positive ही है, which means the transmitted wave is not. But also you can check, not just that these are positive and negative, but you can see that C2 minus C1 in any case will be smaller than 1. Agreed? ऊपर इसमें डिफरेंस लिखा है, नीचे सम लिखा है दो क्वांटिटीज का, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 से कम ही होने वाला है. R का मैग्नीट्यूड तो 1 से कम ही होने वाला है. Yes, sir. बेसिकली R 0 और -1 के बीच में है. राइट? करेक्ट? R is between 0 and -1. C2 by C1 plus C2 by C1 का mod is always smaller than 1. Implies R is bigger than -1. You all understand what this means? Basically, R is between 0 and -1. बट अगर R 0 और -1 के बीच में है तो एक तो R नेगेटिव है और दूसरा R 1 से छोटा फ्रैक्शन है. मतलब it is something like -3/4 minus whatever. Which means the reflected wave is first of all inverted up down minus sign के कारण, and दूसरा it is smaller than the incident wave. It has to be smaller than the incident wave because this is a fraction. Correct? And as for T, and C2 plus C2 by C2 plus C1 के बारे में क्या कह सकते हो उसके मॉड के बारे में? C2 C1 से छोटा है तो 2 C2 और C1 से छोटा होगा या बड़ा होगा? This is also less than 1, which implies the transmission coefficient is bigger than 0 but smaller than 1. यानी जो ट्रांसमिट हुआ है वेव वो भी साइज में इंसिडेंट वेव से छोटा है, लेकिन वो इन्वर्टेड नहीं है, अप डाउन इन्वर्टेड नहीं, क्योंकि t जो है पॉजिटिव नंबर है. Therefore, the situation that emerges in this context is that you have some incident wave, पल्स मैं बना रहा हूँ एक, जो एक रेयर से डेंसर मीडियम में एंट्री मारने वाला है, और आउटकम ये होने वाला है कि एक उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा जो उल्टा होगा और उससे छोटा होगा, और एक उसका ट्रांसमिटेड पार्ट होगा जो सीधा होगा और उससे छोटा होगा. दोनों ही साइज में उससे छोटा रहेंगे, लेकिन एडिशनली रिफ्लेक्टेड वेव अपसाइड डाउन भी हो जाएगा. इसका फेज डिफरेंस ऑफ पाई भी आ जाएगा उसके साथ. ट्रांसमिटेड वेव का कोई फेज डिफरेंस ऑफ पाई नहीं है. तो हमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें म्यू वेरिएबल है. आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा कि ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन तुम्हें करना है विद वेरिएबल म्यू. ये हो सकता है सिंगल स्ट्रिंग है, उसमें म्यू वेरी कर रहा है तो वेव का स्पीड उससे वेरी कर रहा है तो निकाल लो, जैसे हमने किया था एक वर्टिकली सस्पेंडेड स्ट्रिंग टाइप. ठीक है, ये केस सबको समझ में आ गया. दूसरा केस ले लो. अच्छा, इसी केस का एक्सट्रीम एंड भी ले लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है. स्पेशल केस ऑफ दिस, इसका स्पेशल केस ये होता है कि C1 is so much bigger than C2 जीरो हो जाए टेंडिंग टू that C2 is pretty much 0. ठीक है, C1 is so much bigger than C2 that
C2 is almost 0. तो रिजिड वाला जैसा हो जाएगा। करेक्ट। तो उस केस में तुम्हारा R जो आएगा वो कितना आएगा? -1। माइनस C1 by C1 यानी कि -1, और T तुम्हारा आएगा 0। तो कुछ ट्रांसमिट नहीं होगा और पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये पहली बार है एंड इट इज द ओनली सिनेरियो वेयर R is exactly 1. ऑल ऑफ द वेव, बिकॉज R मल्टीप्लाइड होता है ना yi में टू गिव यू YR, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड वही है जो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, लेकिन इन्वर्ट तो तब भी हो गया। जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो अपसाइड डाउन तो हो ही जाता है वो। लेकिन अगर वो इतना डेंस है, दूसरा मीडियम इनफाइनाइटली डेंस है कि उसमें स्पीड 0 हो गई वेव की, तो बेसिकली सारा वेव वापस आएगा और उल्टा वापस आएगा और उधर कुछ नहीं जाएगा। ये वाला केस है that you have pretty much a rigid ball and a wave goes in pulse and an exact copy of it but upside down comes back. ठीक है, सबको समझाए? यस सर, दोनों का रेंज -1 और +1 के बीच में होगा ना, T और R का। इन जनरल हाँ, करेक्ट। तो ये स्पेशल केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली किसी ना किसी रिजिड सपोर्ट के साथ स्ट्रिंग होता है, गिटार का स्ट्रिंग है, कुछ भी है। एक्चुअली रियलिटी में इट्स अ ब्लेंड ऑफ, आई मीन इट्स लाइक कि गिटार का बॉडी से कनेक्टेड है गिटार का स्ट्रिंग, गिटार का बॉडी जो है वो स्ट्रिंग जैसा नहीं है, इट इज डेफिनेटली मोर रिजिड बट इट इज ऑल्सो नॉट इनफाइनाइटली रिजिड। आई मीन देयर इज नो एब्सोल्युटली रिजिड ऑब्जेक्ट लाइक राइट, वुड इज नॉट परफेक्टली रिजिड. So it is, that's why this case covers more realistic cases. Like this is an idealization, but no material is actually rigid, but quite close, right? So if a string, guitar string is tied to the wooden body, then the wooden body is relatively quite rigid compared to the guitar string. So your actual reality might be somewhere in this domain, more close to this, right? But it's not exactly like this because some vibrations will go into the guitar body also, right? So just like hitting a rigid ball on a ground. हाँ, गिटार का बॉडी रिजिड नहीं है, तो जब ये वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होता होगा जब तुम स्ट्रिंग प्ले करते हो, और यही तो कारण है कि तुम अगर एक बार स्ट्रिंग प्लग करोगे तो थोड़ी देर तक साउंड सुनते रहोगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एंडलेसली बजता ही रहेगा वो एक बार प्लग करने के बाद, क्योंकि वेव जब तुम प्लग करते हो और छोड़ते हो, तो गिटार का स्ट्रिंग को जब तुम प्लग करके ऐसे करते हो और फिर छोड़ते हो, तो जब वो नीचे आता है तो फिर वो दोनों तरफ वेव भेजता है ऐसे करके, फिर जो वेव्स ट्रैवल करते हैं फिर वो बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं, और फिर जो जा रहा होता है वेव उसके साथ सुपरपोज करते हैं, क्योंकि एक वेव नहीं निकलता, वहां से निकलते रहते हैं रिपल्स ऑन अ पॉइंट की तरह, और फिर जो वहाँ बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं वो इनके साथ सुपरपोज करके स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। यही वेव, ये वेव जा रहा है और एक रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, लेकिन इधर से आ भी रहा है अभी कॉन्टिन्यूसली, तो जाता हुआ आता हुआ सुपरपोजिशन होकर एक टाइप का वेव बनता है जिसे स्टैंडिंग वेव कहते हैं, तो पूरे गिटार स्ट्रिंग में वो बन जाएगा। बट लेकिन वो उसका होने से क्या हो रहा है कि कॉन्टिन्यूसली वेव रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, बट क्योंकि गिटार का बॉडी लकड़ी का है, परफेक्टली रिजिड नहीं है, तो जो चीज जा रहा है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मैग्नीट्यूड का चीज वापस नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा उससे कम तो है, क्योंकि बॉडी के अंदर भी वाइब्रेशन चला गया, लकड़ी भी वाइब्रेट कर रहा है। इनफैक्ट वो उसका डिजाइन का पार्ट है, अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी का गिटार बना देंगे तो उसका उतना अच्छा साउंड नहीं आएगा, क्योंकि गिटार इज नॉट सिंपली अ स्ट्रिंग, राइट? गिटार इज अ स्ट्रिंग एंड एन एम्पलीफायर, द वुडन बॉडी इज एन एम्पलीफायर. We want some of this oscillation to go into the wooden body, so the whole wooden body basically acts like a woofer. ठीक है, ये primitive woofer था कि भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसका वूफर उसके साथ आता है, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ वुडन बॉडी व्हिच इज हॉलो, बिकॉज इट प्रोवाइड्स दैट एम्पलीफिकेशन टू द साउंड, right? So you want the sound to go into the body, so some sound goes into the body and therefore what reflects is not exactly -1. This is a special case, but in reality something less than -1. And so after a few rounds of this, and the waves are quite fast, it doesn't take too long for them to do the guitar string circuit many times over, and in every reflection from either end you lose some, so by the time it has done like 100 rounds, and it doesn't take too long. I mean the speed of sound in a steel wire is like 5 kilometers a second. तो वो वायर जो है 1.5-2 फुट लंबा, उसको वो करने में क्या ही टाइम लगाता होगा, जब वो 100-200 राउंड मार लेगा तो बाय दैट टाइम ये जो पल्स है ये कुछ भी नहीं बचेगा, मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी बॉडी में चला गया होगा। So also एयर के से डैम्प होगा ना, और एयर की वजह से डैम्पिंग भी हो रही है, क्योंकि गिटार का स्ट्रिंग जो मूव कर रहा है एयर मॉलिक्यूल्स है, उनको उसको पुश करना पड़ता है बार बार, तो वो थोड़ी एनर्जी लेके चले जाते हैं। गिटार का बॉडी वाइब्रेट करता है हवा में, तो वो भी, तो वो सब तो है ही, नेचुरल डैम्पिंग तो होती है, बट जस्ट टू इलस्ट्रेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। अब दूसरा साइड से केस ले लो कि अगर वेव में भी इस साइड से आ रहा है, डेंसर मीडियम से आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? क्या
wave goes from denser to rarer medium. फिर राइट के जैसे ऑप्टिक्स में क्या था वैसा है ना, रिफ्लेक्शन जैसा सिमिलर मतलब सब वो रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे जो रेयर से डेंसर जाता है। हाँ, उसमें हमने दूसरी चीज पढ़ी थी जो यहाँ पे हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं सिचुएशन का। उधर हम लाइट एंगल पे आ रही थी, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम था, और ये देखना था कि जो उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो किस एंगल पे जाएगा और जो उसका ट्रांसमिटेड पार्ट है वो किस एंगल पे जाएगा। ये नहीं देखना था कि जो ट्रांसमिटेड पार्ट है कितना वो जा रहा है। अगर वो इंसिडेंट ऐसा है तो वो ट्रांसमिटेड ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ये नहीं देखना था उधर, राइट। और रिफ्लेक्टेड ऐसा होगा कि ऐसा होगा, या ऐसा होगा कि ऐसे होगा, राइट। कितना डिम होगा इसके मुकाबले, कि अगर ये 100 वॉट्स लेकर आ रहा है तो ये 20 वॉट है और ये 80 वॉट है। ये कंसर्न नहीं होता था रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स वाज अबाउट द डायरेक्शन इन विच दे गो, नॉट व्हाट दे लुक लाइक व्हेन यू लुक एट देम एज अ वेव। यस सर। यहाँ पे जो है हम वो वाला एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे वी वांट टू सी व्हाट दे लुक लाइक एज अ वेव। तो इसलिए हमने डायरेक्शन वाला पार्ट इसमें से हटा दिया है। ये तो 1 डायमेंशनली मीडियम है, इसमें सब या तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। तो एंगल का तो कोई गेम बचा नहीं है, उसमें हमें इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम दूसरा एस्पेक्ट देखना चाहते हैं कि इफ यू लुक्ड क्लोजली इनटू द रे which was till that point, till ray optics was only simply a mathematical line, had no internal physics. What if you looked into the ray and found something? You would find waves, and then you would like to know what happens to the wave itself, because the wave has additional features, right? It has like a wavelength, it has like an amplitude, it has a phase. So you would also want to know, once reflected and transmitted, what happens to those properties, not just the direction in which it is going, but what happens to its size in both horizontal and vertical. तो वो चीज अभी डिस्कस हो रही है। Naturally, with real light, all of these factors are combined. Not only is there a directionality involved, ड्यूअल there is नेचर। also, ठीक है, वो सब भी। तो ये वेव आ रही है तुम्हारी इधर से, इधर जाएगी। तो अब तुम्हारा क्योंकि डेंसर से रेरर में जा रहा है तो C1 is smaller than C2. तो therefore R जो है, which is C2 minus C1 over C2 plus C1 is obviously greater than 0, which means in this case the reflected wave is not up down inverted. अभी अप डाउन इन्वर्टेड तो मैं लिख रहा हूं अभी के लिए, बट द करेक्ट वे टू से इट, द टेक्निकल वे टू से इट इज दैट देयर इज नो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सॉरी, the reflected wave suffers no phase difference when it comes from a denser medium. When a wave comes from a denser medium and reflects, the reflected wave suffers no phase difference compared to the incident wave. ठीक है, बट ऑफ कोर्स इन जनरल आर की वैल्यू तो 1 से कम ही होती है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 से कम ही है, तो छोटा तो होने ही वाला है वो। ठीक है, एंड एज टू ट्रांसमिटेड वेव विच इज 2C2 by C2 plus C1, ये क्या होगा? अब C2 C1 से बड़ा है तो C2 C2 plus C1 से भी बड़ा होगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज नाउ बिगर देन 1. You all see? Which means the wave that goes into the next medium is actually taller than the wave that came. कि आउटकम ये होने वाला है कि तुम्हारा डेंसर मीडियम में से ये वेव आया, और जो वापस जाएगा वो तो इससे छोटा ही होगा, लेकिन जो आगे जाएगा वो इससे भी ऊंचा है। कितना ऊंचा होगा वो डिपेंड करेगा रिलेटिव वैल्यूज ऑफ C1 plus C2, C1 और C2 पे। जस्ट लाइक ऐसा कोलिजन हो कि मोर ट्रांसफर हो गया। तो क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट कर रहा है? नहीं, क्यों? ये तो लंबा है, उससे एम्पलीट्यूड बड़ा है। दूसरा वाला उतना ही छोटा हो गया ना। वो भी है, ओवरऑल जब तुम एडअप करोगे तो इसके बराबर ही आएगा। और एंड इट इज ऑल्सो कंप्लीटली ओके फॉर दिस मीडियम टू वाइब्रेट इन अ मच वायलेंट ऑसिलेशन because it is also a lighter medium. So even though these particles are going on a much bigger SHM, they are also individually lighter. You all understand? वेवलेंथ छोटी है।
नहीं वेवलेंथ छोटी नहीं, अच्छा हाँ मैंने गलती कर दिया, ये इन्वर्टेड नहीं है, सॉरी। R पॉजिटिव है ना? This is not inverted in this case. When a wave reflects from a rarer medium, it is not inverted. The reflected wave is not inverted, although it is smaller than the incident wave. Smaller reflected wave taller transmitted wave. So what you see in both cases is that the transmitted wave is never inverted. पिछले वाले केस में भी तुमने देखा, क्योंकि Yes, t sir. कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसलिए जो वेव ट्रांसमिट होती है वो कभी भी इन्वर्ट नहीं होती है। रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट हो सकती है, अगर वेव रेयर मीडियम से आ रहा है और फिर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो उसका रिफ्लेक्टेड वेव जो है उल्टा होगा, ठीक है, उसको फेज डिफरेंस ऑफ पाई आ जाएगा। और अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है और रिफ्लेक्ट होता है तो उसका रिफ्लेक्टेड वेव भी उल्टा नहीं होगा, ट्रांसमिटेड तो कभी भी उल्टा नहीं होता। t greater than 1 आ गया गौरव, उसका कुछ नहीं कर सकते, इट इज नॉट वायलेटिंग एनी कंजर्वेशन लॉ और एनीथिंग, it just happens to be the case that the wave on the lighter side is taller, has a bigger amplitude than the actual incident wave, but this violates no conservation law. डेल्टा फेज क्या है वो नहीं समझा। डेल्टा फेज डिफरेंस है ना कि अगर तुम इसको साइन की तरह बना दोगे पूरे को, अगर ये केवल एक पल्स नहीं होता, अगर पूरा साइन होता तो डेल्टा फाई पाई होने का मतलब होता है कि जहां एक का क्रेस्ट है वहां दूसरे का ट्रफ आ गया, बेसिकली ऐसे, ओके अंडरस्टूड। क्योंकि दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू मूविंग इट अहेड बाय लैम्डा बाय 2, हाँ सर। which is the same as turning the phasor by half pi, Got it. राइट। तो अगर तुम फेजर को पाई से घुमा देते हो तो एक साइन वेव दूसरे साइन वेव के रिलेटिव आधा वेवलेंथ आगे चला जाता है, और आधा वेवलेंथ आगे जाने से क्या होता है कि पहले अगर उनका क्रेस्ट मैच हो रहा था तो फिर अब इसके क्रेस्ट की जगह इसका ट्रफ आ जाता है, जिस उस ड्राइंग को देख के हम कहते हैं कि ये इससे पाई शिफ्टेड है फेज में, जो कि फेजर पे देखा जाता है, समझ गया। ठीक है। और इसका भी स्पेशल केस है, एक्सट्रीम एग्जांपल, C1 much less than C2. कि C1 जो है, I mean basically you could say that C2 tends to infinity ना, सर या फिर यहाँ पे C1 स्ट्रिंग, less than C2. हाँ C1 इज, या तो C1 इज 0, you could say C1 is 0 और C1 tends to 0, एक ही बात है ना। हाँ सर। तो कोई सा भी डाल दो, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. C2 minus 0 over C2 plus 0 यानी +1 आ गया, यस सर। पूरा वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगा और अपसाइड डाउन भी नहीं होगा। और t की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2C2 by C2 plus 0 यानी +2। ये जो है, you have to be careful about this, this is not relevant and is basically an unphysical result, it is a purely mathematical result। क्यों? क्योंकि इसका एक्सट्रीम केस में तुम क्या कह रहे हो कि राइट साइड में स्ट्रिंग ही नहीं है, राइट। मतलब राइट साइड में पिछला केस का एक्सट्रीम एग्जांपल था, राइट साइड में रिजिड वॉल है, तो इस केस में एक्सट्रीम एग्जांपल क्या है कि राइट साइड में कुछ नहीं है, स्ट्रिंग हवे में है बस। अभी छोड़ देते हैं, ये हम डिस्कस कर लेंगे कि स्ट्रिंग हवे में कैसे हो सकता है और उसमें टेंशन हो, लेकिन ये स्पेशल केस का मतलब तो ये है कि आगे कुछ नहीं है फिर। सर लाइक वैक्यूम में और वेव हो रहा है तो बाद में एंड पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट हो, क्या वैसा है? हाँ बेसिकली इसका जो रियलिस्टिक एग्जांपल है वो है जैसे जो विप होता है ना, जब हम विप चलाते हैं तो विप इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रिंग which has a completely free end, there is nothing ahead of it। उसमें भी वेव जनरेट कर सकते हो तुम, विप चला के वेव चलती है उसके अंदर, और टेंशन उसमें इसलिए आता है क्योंकि हम उसको घुमा रहे होते हैं ऐसे करके, तो घुमाने के कारण उसमें टेंशन आ जाता है इवन दो द स्ट्रिंग का एंड इज नॉट अटैच टू एनीथिंग। तो उस केस में जो पल्स तुम प्रोड्यूस करोगे ऐसा विप चलाने से वो ट्रैवल करता हुआ जाएगा और एंड पे जाके पूरा ऐसा वापस आ जाएगा, क्योंकि आर तुम्हारा पॉजिटिव और +1 है। अब एक्चुअल जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो विप विप नहीं बोलते हैं, हम फ्री एंड ऐसे दिखाते हैं, इसको बोला जाता है फिक्स्ड एंड। दिस इज इन द लैंग्वेज ऑफ वेव्स कॉल्ड अ फिक्स्ड एंड। और इसका जो दूसरा एक्सट्रीम एग्जांपल है विच इज कॉल्ड अ फ्री एंड इज बेसिकली क्रिएटेड बाय दिस मैकेनिज्म, यू सेंड अ पल्स on a string
which is then basically using a sort of a ring allowed to move vertically on a rod without friction. Do you understand how this is a free end? Yes, sir. ठीक है, फ्री इन द सेंस ऑफ वर्टिकल मोशन के लिए फ्री है, लेकिन हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट होने के कारण टेंशन भी हो सकता है. सर फ्री एंड है क्योंकि डिप में वो नहीं होगा ना, बिकॉज वी आर आल्सो पुलिंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स अस. उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगा ना डिप में. नहीं चल सकता ना, बिल्कुल वही साइज का है जितना रॉड है. तो ऐसे ऐसे नहीं हिल सकता है, लेकिन ऐसे फ्री टू मूव है, और वही चाहिए क्योंकि वेव तो ऐसे ही चलाता है पार्टिकल्स को, तो सेंस में फ्री है ये एकदम. ठीक है, तो इसका आउटकम ये होगा कि ये वेव जाएगा और बिना अपसाइड डाउन हुए पूरा का पूरा सेम चीज वापस आ जाएगा. ठीक है, ट्रांसमिट कुछ नहीं हो रहा है. ये ट्यूब मैं बताता हूँ किस लिए आ रहा है अभी, लेकिन रिफ्लेक्शन वाला पार्ट तो तुम लोग समझ गए ना कि जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो पूरा का पूरा वेव बिल्कुल एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है. और याद रखो कि कोई फेज चेंज भी नहीं है, यानी अपसाइड डाउन नहीं हो रहा है. तो अगर मैं साइन वेव भेजूंगा फ्री एंड पे तो कैसा वापस आएगा वो. तुम ये एग्जांपल बताओ मेरे को. एज अ प्रॉब्लम कर लो तुम लोग इसको. चलो कि इफ आई सेंड दिस थिंग towards a free end, can you guys draw what will come back? And you can also make a drawing. इसका मैं इसी के नीचे बना दूंगा सॉल्यूशन. और तुम दूसरा एग्जांपल इसी को ले लो, राइट ट्राइंगल टाइप जा रहा है ऐसा, लेकिन एक बार फिक्स्ड एंड के साथ रिफ्लेक्ट करा के ले आओ. दोनों का ड्राइंग बना लो, कैसा कैसा दिखेगा वापस आता होगे. तो चैट पे भेजा है. ये पहले वाले का आंसर है. हाँ सर. हाँ करेक्ट है. दूसरे का ही बता दो. हो गया सबका. हाँ सर. इधर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट तो करना ही है, वो तो रिफ्लेक्शन होता ही है, लेकिन ये नहीं करना है उसको. तो ये वापस आता हुआ ऐसा दिखेगा. इधर में लेफ्ट राइट करना ही है क्योंकि रिफ्लेक्शन है, लेकिन अप डाउन भी करना है. तो ये बना के और फिर इसको उल्टा कर दो. सबको समझ गया. Yes, sir. आप साइन वेव का दे देंगे तो साइन वेव भी तो बना सकते हो. इस केस में अगर साइन वेव जाएगा जिसमें क्रेस्ट होगा और फिर ट्रफ होगा, तो ट्रफ पहले जाएगा, तो जो वापस आएगा उसमें ट्रफ आगे होगा और क्रेस्ट पीछे होगा. लेकिन इसमें क्या होगा, ट्रफ आगे होगा क्रेस्ट पीछे होगा, लेकिन उल्टा कर दोगे तो क्रेस्ट आगे और ट्रफ पीछे हो जाएगा. मैंने बना देता हूं. क्योंकि तुम एक साइन वेव ऐसा डाल रहे हो और वो फ्री एंड से आने वाला है, तो कैसा दिखेगा. वैसे लैम्डा सेम होगा ना. लैम्डा सेम ही होगा रिफ्लेक्शन में. इस साइड ही है, एक ही स्पीड है, एक ही फ्रीक्वेंसी, तो एक ही वेवलेंथ है. तो ये कैसा दिखेगा, इसमें क्रेस्ट इधर होगा और ट्रफ उधर होगा. क्रेस्ट आगे ट्रफ पीछे, क्योंकि क्रेस्ट पहले गया था. अग्रीड. यस सर. लेकिन अगर इससे कराओगे, इसको देख के तुम हो सकता है कोई बोले कि ये तो फेज डिफरेंस ऑफ पाई है. वो नहीं होता है फेज डिफरेंस ऑफ पाई का मतलब. इसके अगेंस्ट नहीं कंपेयर करना है. तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. नहीं सर. ये ड्राइंग देख के तो कोई कहेगा कि ये वेव इससे फेज डिफरेंस ऑफ पाई पर है, राइट. यस सर. वो नहीं है फेज डिफरेंस ऑफ पाई, क्योंकि फ्री एंड में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है. जैसा ये दिखता उसमें एडिशनल फेज डिफरेंस नहीं आया है, वैसे ही दिखता है ना ये. हाँ. तो इससे मत कंपेयर करो जो ये होता. अब इधर से अगर तुम जाओगे साइन वेव डालोगे ऐसे करके, तो एक तो ये लेफ्ट राइट इन्वर्ट होगा, तो अब ट्रफ आगे क्रेस्ट पीछे, और फिर तो इसके जैसा ही दिखेगा. लेकिन ये तो खत्म हो चुका है ना, यहाँ पे फेज डिफरेंस ऑफ पाई आया है. ये जो हुआ है ये फेज डिफरेंस ऑफ पाई है. इधर फेज डिफरेंस ऑफ 0 है.
बट द फेज डिफरेंस इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड विद द इंसिडेंट वेव, क्योंकि उस ड्राइंग के हिसाब से तो यहाँ फेज डिफरेंस ऑफ पाई और यहाँ नहीं है, राइट? तुम लोग समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? सब फेज वाला थोड़ा अनक्लियर है। ये दोनों एक ही फेज में है ना. इफ दे वर स्टैटिक ड्राइंग्स दे आर एग्जैक्टली द सेम वेव, राइट देयर इज नो फेज डिफरेंस. राइट But there is a phase difference. This is the one where is the phase difference. The phase difference is not a comparison with the reflected and the incident. The phase difference is a comparison with the reflected and what it would have been without a phase difference. ओके अंडरस्टूड सर। ठीक है कि वो तो होना ही है उसको. अब अगर एडिशनल ये हो गया तो फेज डिफरेंस कहते हैं पाई का उसको. तो वो यहाँ हुआ है. हाँ Don't judge it by comparing it to what the incident wave used to look like. The incident wave is no longer existing. ठीक है. आई होप सबको समझा होगा मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये सब तुम लोग कर सकते हो. कोई भी तुम्हें शेप दे देंगे और बोलेंगे बताओ कहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया है तो कैसा दिखेगा. तो ये एक्सट्रीम केसेस हैं फ्री एंड और फिक्स्ड एंड वाले, राइट? एंड बाय द वे जब हमने पिछला प्रॉब्लम किया था पिछले लेक्चर में, लास्ट प्रॉब्लम जिसमें तुमने 89 और 11% निकाला था, इफ यू रिमेंबर, उसमें 89 और 11% खुद से आता है. ऐसा नहीं कि तुम एनर्जी कंजर्वेशन अपनी तरफ से इम्पोज करते हो. जो रिजल्ट्स है वाई टी और वाई आर के, जो आर और टी के टर्म्स में है, वो खुद ही इंश्योर कर देते हैं कि एनर्जी कंजर्व होगी. मतलब एनर्जी इज ऑटोमेटिकली कंजर्व. यू डोंट हैव टू एडिशनली से कि क्या इस केस में एनर्जी कंजर्व होगी. वो हर केस में होता है. लाइक अगर तुम जनरली स्पीकिंग लिख लेते हो कि तुम्हारा जो पावर इंसिडेंट है वो हम कैसे लिख रहे थे? एवरेज पावर हाफ, इफ यू रिमेंबर, टी के ए स्क्वायर ओमेगा, राइट? ऐसे ही कुछ लिख रहे थे, जिसको तुम ओमेगा स्क्वायर बाय सी भी लिख सकते हो. तो इंसिडेंट के लिए ये है, रिफ्लेक्टेड के लिए हाफ टी तो टी ही रहेगा, ए हो जाएगा आर ए, ओमेगा ओमेगा रहेगा और सी सी ही रहेगा क्योंकि रिफ्लेक्टेड वो उसी साइड आएगा जिधर इंसिडेंट होता है ना? या बोल दो उसको C1 C1. और पावर ऑफ ट्रांसमिटेड वेव कैसे लिखोगे? हाफ टी तो टी ही है, दोनों स्ट्रिंग में सेम टेंशन है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो उसका होगा वो टी ए हो जाएगा, करेक्ट? ओमेगा ओमेगा रहेगा और सी C2 हो जाएगा. सही है. ये बस मैं दिखा रहा हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन इज एन ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर रिजल्ट्स. यू डोंट हैव टू से और आस्क कि क्या इस बार होगा या इस केस में होगा. वो हर केस में होता है. अब तुम देखो एक बार कि पी आर प्लस पी टी कितना आता है तुम्हारा. पी आर प्लस पी टी आएगा हाफ टी ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर? आर स्क्वायर बाय C1 प्लस टी स्क्वायर बाय C2, ये बचेगा. आर और टी के वैल्यूज डाल के देख लो. यू विल बी एबल टू शो दैट दिस इज एग्जैक्टली हाफ टी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये पूरा चीज जो है ये 1/C1 आ जाएगा, which is incident power. All right. So energy conservation is automatic in reflection and transmission. It is not case to case basis कि इस केस में होगा या नहीं होगा, क्या डेंसर से रेयर में होगा या नहीं होगा, क्या इस शेप ऑफ वेव के लिए होगा या नहीं होगा. It is always the case that energy is conserved in reflection and transmission. The sum of the transmitted energy or power and the incident and the reflected power is always equal to this incident power. ठीक है. यहाँ लिख देता हूँ मैं, एनर्जी कंजर्वेशन is an automatic consequence of reflection and transmission. ठीक है, क्लियर?
सबको समझ गया पूरा डिस्कशन आर और टी का? Yes. Yes, sir. राइट। और बाकी जो एक्स स्केलिंग है वो तुमको समझ में आ गया है। अगर आगे स्पीड हाफ हो जाता है तो आगे वेवलेंथ भी हाफ हो जाएगा, आगे स्पीड डबल हो जाता है तो आगे वेवलेंथ भी डबल हो जाएगा, बिकॉज द ओनली अदर फैक्ट टू कीप इन माइंड इज दैट एफ लैम्डा इक्वल्स टू सी एंड एफ इज द सेम, एफ डज नॉट चेंज। दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको मत भूलना। एफ जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। तीनों चीजों की, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, दे ऑल हैव एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी। They might have different speeds. Of course, the incident and the reflected wave will always have the same speeds because they are in the same medium. So for the incident and the reflected wave, since the frequency is the same and the speed is the same, the wavelength is also the same for both of them. That is a consequence of them being in the same medium and having the same frequency. The transmitted wave can have a different wavelength because it can usually will have a different speed on that side. But all three of them always have the same frequency. ठीक है, F never changes. अच्छा, तो अब जो है हम आ जाते हैं अपना लास्ट टॉपिक पे ऑफ वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, विच इज दैट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, आल्सो कॉल्ड डैम्प्ड स्टेशनरी वेव्स है वेव्स। हमें, क्या चीज? डैम्प्ड वेव्स करने वाला। नहीं नहीं, वेव्स में हम डैम्पिंग नहीं पढ़ेंगे, ऑसिलेशन में तुमने पढ़ा होगा एसएचएम में, बस उतना ही हमको करना होता है। तो अब स्टैंडिंग वेव्स कैसे बनता है? इफ यू रिमेंबर, मैंने एक फ्लो चार्ट तुम लोगों को बना के बताया था कि वेव्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, तो उनका सुपरपोजिशन फिर वैसे करते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of phi। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के हैं तो स्टैंडिंग वेव्स बनता है। सेम डायरेक्शन में और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं तो बीट्स बनता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन। तुम लोग वो वीडियो देखना, मैंने ग्रुप पे जो शेयर किया था पल्सेस एंड वेव्स, उसमें लास्ट में स्टैंडिंग वेव्स वाला पार्ट भी दिखाता है वो। वेव्स of same frequency and mainly same amplitude। हम सेम एम्पलीट्यूड वाला देखेंगे, ऑल्दो ये नेसेसरी नहीं है, बट सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मेन कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑपोजिट होना चाहिए। अब ये कैसे होता होगा रियलिटी में? तो रियलिटी में क्यों प्रोड्यूस होता है स्टैंडिंग वेव? इसलिए नहीं होता है कि दो तरफ से कोई वेव भेज रहा होता है, हो भी सकता है, बट दैट्स अ रेयर सिचुएशन। The more common situation is that some wave is transmitted and then it reaches a boundary, maybe a rigid wall, maybe whatever, and then as it reflects, it becomes a wave that is going in the other direction while the incident wave is still incoming। वो तो constantly आ रही है वो wave, उसी का जो पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया है वो जब आता हुआ वेव से सुपरपोज करता है तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव पैटर्न बन जाता है। The reason for studying standing waves, the motivation is not कि भाई कोई करेगा artificially इधर से प्रोड्यूस और इधर से प्रोड्यूस, although वो कर ही सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है, you can always produce two waves from two sides, but the reason they are seen or were seen for the first time is that somebody would have tied a string to some wall and would have been constantly sending waves, and those waves would have gone, and as they would have reflected from here, they would have superposed with what is still incoming। ठीक है, तुम लोग वो वीडियो में देखना या वो सिमुलेटर देखना जो इसने शेयर किया था पार्थ ने, वो ट्राई दैट आउट, इट्स अ नाइस वन, PHET। उसके उसके उसमें काफी सारे सिमुलेशंस हैं फॉर वेरियस टॉपिक्स इन फिजिक्स। सो वेव्स वाला खोल के जब तुम सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस, समटाइम्स यू विल फाइंड द वर्ड इंटरफेरेंस, बट दैट इज नथिंग नो डिफरेंट फ्रॉम सुपरपोजिशन, दे आर तो वन एंड द सेम। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। करेक्ट, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मैं बता देता हूँ, ऑल्दो यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग में, बट स्टिल लेट मी टेल यू कि जब दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, अभी स्टैंडिंग वेव्स को एक साइड रख लो, जब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, वो वही सिचुएशन है जो हम पहले पढ़ रहे थे ना, हमने देखा था वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन में तुम्हारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया था
वो आया था पहला का एम्पलीट्यूड, दूसरा का एम्पलीट्यूड और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। अब खुद ही सोचो इसकी मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है जब cos phi 1 होगा। हाँ सर। सो उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब ये बेसिकली स्टैंडिंग बढ़ जाए तभी कंस्ट्रक्टिव और कम हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव। जब मैक्सिमली बढ़ जाए तो कंस्ट्रक्टिव और जब मैक्सिमली खत्म हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू स्टैंडिंग वेव्स, दिस इज स्टिल वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। Basically it has to do with how well aligned they are. If you take a sine wave and you take a copy of the sine wave and you put it right on top of each other without shifting them like this, then the peaks and the peaks will match, the troughs and the troughs will match, and everything will become double. That's called constructive interference. If you take a sine wave and then take a copy of the sine wave, but then you move it ahead by lambda by 2, or you make it inverted, either of them does the same thing, and then you put it on top, देन जहां इसका पीक होगा वहां इसका क्रेस्ट होगा एंड वाइस वर्सा, तो वो पूरा चीज एकदम जीरो हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एनी अदर इंटरफेरेंस इज समवेयर बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, right? If they are perfectly matched, that's a constructive, produces a wave of twice the size. If you move it ahead by lambda by 2, then that's destructive and you will get 0. But if you move it ahead but not by lambda by 2, somewhere between 0 and lambda by 2, then you will get something smaller than 2a and something bigger than 0, right? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब फेज डिफरेंस जो है वो 2n पाई होता है, which will produce the value of 1 for cos phi. And so in that case, the resultant amplitude will simply become a1 plus a2. You can see ये 1 हो जाएगा, ठीक है। So that's like saying कि एक वेव जो है वो ऐसा दिखता था, ठीक है, और दूसरा वेव जो है वो भी ऐसे ही दिखता था। मान लो दूसरा वेव जो है इस एम्पलीट्यूड का था a1 और a2, लेकिन वो फेज में है, देख रहे हो फेज डिफरेंस 0 है या 2n पाई है। तो जो नेट वेव बनेगा वो सिंपली ये हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। While destructive interference will be produced when the phase difference is some odd multiple of pi. So like pi, 3 pi. बेसिकली तुम्हें पता है कि तुम्हारा सर्कल में जो है cos इधर +1 देता है और इधर -1 देता है। cos इवन पाई पे 1 देता है और ऑड पाई पे -1 देता है। तो उस केस में जो a रिजल्टेंट है वो बन जाएगा mod of a1 - a2, क्योंकि ये -1 हो जाएगा, a1 - a2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो वो केस ये बनेगा कि एक वेव तुम्हारा ऐसा दिखता है a1, दूसरा वेव जो है तुम्हारा ऐसा दिखता है a2 और ये a1। तो नेट वेव जो है वो इनका डिफरेंस बनेगा एम्पलीट्यूड में, ठीक है। अब अगर ऑब्वियसली दोनों एम्पलीट्यूड भी सेम हुए दोनों वेव्स के जो सुपरपोज हो रहे हैं, तो नेट वेव एकदम फ्लैट लाइन हो जाएगा, जीरो वेव बन जाएगा। बट दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। इट डज नॉट नीड टू मीन दैट द वेव इज जीरो, it means that there is a straight difference of the amplitudes. This is the worst amplitude that you can get with these two waves, and this is the best amplitude that you can get with these two waves. Right? Any other interference which is between these two, मतलब तुम्हारा फेज जरूरी नहीं है कि ये और ये हो, कुछ और भी हो सकता है आर्बिट्ररी, तो कुछ और बनेगा जो इन दोनों के बीच में आता होगा, which is neither constructive nor destructive but simply interference. These are the two extreme scenarios. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो A रिजल्टेंट बनता है that is always smaller than equal to the simple sum of the two amplitudes and is bigger than equal to the difference of their values. The resultant amplitude can lie in this range when two waves of A1 A2 amplitude superpose, and this is what happens. ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।
फिर उसके बाद हम साउंड पे जाएंगे. Any questions so far? Okay, all right. Thank you all. Bye.